Hello students, welcome to the ANTS Full Test 5 and we are going to discuss the solution for the botany part. Let's start with our first question. Question number 91. Which of the following is not an example of pleiotropy? What is pleiotropy? When one gene controls multiple phenotype. Okay, generally we know one gene controls one phenotype, लेकिन प्लियोट्रॉपी में one gene control more than one phenotype. और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि which is not an example of pleiotropy. The first option is phenylketonuria. It is an example of pleiotropy. ऑप्शन बी है ह्यूमन स्किन कलर. क्या ह्यूमन स्किन कलर एक प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस है? नो. ह्यूमन स्किन कलर इज ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो ये प्लियोट्रॉपी नहीं होगा. दैट मीन्स ऑप्शन बी is not an example of pleiotropy. Let's see the C option. Gene controlling starch synthesis in pea seed. Yes, it is an example of pleiotropy क्योंकि यहाँ पे जो जीन है ये दो कैरेक्टर, दो अलग अलग फिनोटाइप को कंट्रोल करता है. one is size of grain, another one is shape of seed. Okay, so one gene controlling two phenotype, that means it will be an example of pleiotropy. Sickle cell anemia, again a characteristic, again an example of pleiotropy. So in 91 I will go with option B. 92. How many of the following organelles of eukaryotic cells not bounded by any membrane? तो एक लिस्ट दिया हुआ है ऑर्गेनेली का एंड वी हैव टू फाइंड आउट यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनेली है विदाउट मेम्ब्रेन. माइक्रोबॉडीज हैव सिंगल मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव सिंगल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन. राइबोसोम नो मेम्ब्रेन. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन. गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल्स नो मेम्ब्रेन. तो पहला ऑप्शन ए था कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. हाउ मेनी वी गॉट? राइबोसोम एंड सेंट्रियोल. देन 2. हाउ मेनी बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? देन माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज. यहाँ पे होगा 3. हाउ मेनी बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन? हियर वी हैव क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज 2. तो यहाँ पे सीक्वेंस होगा 2 3 2. वेयर वी गेट हियर 2 3 2. ऑप्शन सी. 93. प्रोटोनिमा. व्हाट इज प्रोटोनिमा? प्रोटोनिमा is called juvenile gametophyte of moss. Okay, it is green, it is creeping, it is filamentous, it is branch structure. But now when we say protonema is, यहाँ पे जैसे ही हमने कह दिया कि ये gametophyte है, what is the ploidy? That is haploid. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है haploid. Okay, and is found in the class Lycopsida. No, Lycopsida is a class of Pteridophyta और वहाँ पे प्रोटोनिमा नहीं होता. ऑप्शन ए is wrong. Haploid correct and is found in Funaria. Yes, it is correct because Funaria is a moss. Diploid ये तो wrong ही है. जैसे ही कह दिया diploid then it is totally wrong. और यहाँ पे था कि Markensia is a liver rot. Okay, and liver rot. और यहाँ पे liver rot, Funaria both are bryophytes but Markensia is not a moss. And most importantly यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? diploid. तो ये तो हो नहीं सकता. Haploid and is found in fern and ferns are pteridophytes. So again option D is wrong. So question number 93 we have option B. 94. Find the mismatch. Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes at metaphase. बिल्कुल करेक्ट है ये. मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होता है और सारे क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज कर देता है. बिल्कुल सही आंसर है. शॉर्ट लिव्ड गैप फेज, एक शॉर्ट लिव्ड गैप फेज विथ नो डीएनए रेप्लिकेशन. Interkinesis. Yes, interkinesis is a gap phase that occur between meiosis 1 and meiosis 2 और ये काफ़ी short lived है और इसमें कोई भी DNA replication नहीं होता. Identity of chromosome is lost as discrete element telophase. Yes, chromosome when reached to the opposite pole during telophase stage, chromosome undergoes
decondensation, and chromosome decondenses to form chromatin reticulum. So when chromosome converts into chromatin reticulum, chromosomes lost their discrete nature, their discrete elemental nature is lost. एकदम सही. Option D, each centrosome radiates out microtubules called ester at the opposite poles, and this is a characteristic of prophase, not anaphase. So according to this, option D is our mismatch. 94. Correct answer is D. Find the incorrect statement of dicot stem. इस पे ध्यान रखो. Dicot stem के लिए कौन सा incorrect है? Option A है epidermis is covered with a thick layer of. No, this is wrong. This is wrong. Okay. Epidermis, अगर हम लोग dicot stem में description देखें तो यहाँ पे होगा epidermis is covered with a thin layer of cuticle, not thick layer. Okay. And it may bear trichomes and a few stomata. तो ये statement correct होता. तो ये तो wrong हो गया, हमें wrong ढूंढना था. Then I will go with option A. Let's see the other options. Hypodermis consists of a few layers of collenchyma. Correct. Cortical cell consists of rounded thin wall parenchyma. That is also correct. And the layer of endodermis in dicot stem is called starch sheet. That is also correct. The parenchyma cells of the endodermis in a dicot stem have rich source of starch grains, and that's why it is called as a starch sheet. Okay. So 95, I am going with option A. Discontinuous synthesis of DNA. During DNA replication, the DNA synthesis is discontinuous in one strand. We know in DNA replication, two strands are used as template. That means in the DNA replication, both the parental strands can take part as a template. तो एक strand है 3' to 5' और दूसरा है 5' to 3'. DNA polymerase can polymerize DNA replication में DNA polymerase का polymerization कौन से direction में होता है? DNA polymerase can polymerize only 5' to 3'. तो जो template strand 3' to 5' है उसका reading continuous होता है. Okay, did you get this point? So जो टेम्पलेट 3' to 5' में है उसका रीडिंग कंटिन्यूअस होगा क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली पॉलीमराइज एट 5' to 3'. जबकि जो इसका रिवर्स स्ट्रैंड है, जो एंटी पोलर जो स्ट्रैंड है, वो उसका पोलरिटी क्या है? 5' to 3'. दैट मीन्स डीएनए पॉलीमरेज will do discontinuous replication on the parental strand जो कि है 5' to 3'. So this is the question and this is the answer. Now let's read the options. पहला ऑप्शन है the two strands of DNA cannot be separated in its entire length due to very high energy requirement. Okay, this statement is correct, but is it the answer? Why during DNA synthesis one strand has discontinuous synthesis? No, यहाँ पे ये relevant नहीं है. Second option है the DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5' to 3'. This is our correct answer. Of course सिर्फ एक ही direction में polymerization कर सकता है, मतलब जो टेम्पलेट 3' to 5' होगा सिर्फ उसी में कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो सकता है, जबकि जो स्ट्रैंड 5' to 3' है वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होगा. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में था कि ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 3' to 5'. ये तो है ही नहीं, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. एंड नंबर डी वाज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज हाईली एफिशिएंट. ट्रू, ये ट्रू है. और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कम समय में पॉलीमराइज कर सकता है, ये भी ट्रू है. लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का एफिशिएंट होना एंड synthesizing और polymerizing large number of nucleotides in a short time, क्या वो आंसर है कि why DNA synthesis occur discontinuously? No. So all other points are irrelevant. 96, correct answer is B. 97, given below are two statements. Statement 1,
reduction in Kelvin cycle involves a series of reactions that involves, okay, Kelvin cycle, that is C3 cycle. If we see Kelvin cycle, then how we can show here? देखो CO2 plus RuBP. CO2 is 1 carbon, RuBP is 5 carbon, and they together form 3-phosphoglyceric acid which is of 3 कार्बन. तो यहाँ पे 1 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल बनना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल बनना चाहिए, राइट? तो ये है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. अभी शुरू होता है रिडक्शन. रिडक्शन में 3-phosphoglyceric acid convert into 1,3-bis-phosphoglyceric acid. Okay, to convert 1,3-phosphoglyceric acid to 1 molecule of this, we need 1 ATP, right? For 1 molecule we need 1 ATP. लेकिन यहाँ पे 2 molecule है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 होगा, और यहाँ पे कितना ATP यहाँ पे यूज होगा? 2 ATP. और ये कौन सा स्टेज चल रहा है? रिडक्शन. In the next step, 1,3-bis-phosphoglyceric acid convert into glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, again 2 molecules, and in this reaction we need 2 NADPH. Okay, so if you read the first statement, reduction in Kelvin cycle involves a series of reactions, that is true, that involves utilization of 2 ATP, yes, 2 ATP and 2 NADPH per carbon dioxide molecule fixed, for 1 carbon dioxide molecule fixed. That is, statement 1 is correct. Now see the statement 2. The fixation of 6 molecules of CO2 and 6 tons of the Kelvin cycle required for the formation of 1 molecule of glucose in C3 pathway. Okay, so now if we see CO2 प्लस RuBP, जब 1 मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे बन रहा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglyceric एसिड. सो यहाँ पे है 1 कार्बन, यहाँ पे है 5 कार्बन, और यहाँ पे है 3 कार्बन. सो वी हैव रिटन 2 मॉलिक्यूल्स. लेकिन अगर यहाँ पे 6 टर्न्स हम करें, सो 6 CO2, 6 RuBP, सो इट विल बी 6 कार्बन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 कार्बन. टोटल कितना कार्बन है यहाँ पे? 36 कार्बन. तो यहाँ पे 3-phosphoglyceric acid with 3 carbon component each, how many molecules it will form? That is 12 molecules, and 12 3 is 36. समझ आ रहा है? तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप पे सेम होगा. यहाँ पे 12 molecules of 1,3-bis-phosphoglyceric acid and 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. तो यहाँ पे यूज होता है 12 molecules of ATP and here 12 molecules of NADPH. So understood here कि for 6 carbon dioxide molecule fixed we need 6 tons of the Kelvin cycle. और अभी जो ये 12 molecules of G3P बना है, इनमें से जो 2 molecule है, 2 molecules of G3P, that is total 6 carbon, will be converted into 1 molecule of glucose. ओके, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल चाहिए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए. बाकी बचा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P, सी ईच विथ 3 कार्बन, टोटल 30 कार्बन. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RuBP, दैट इज रीजेनरेशन स्टेप. देखो यहाँ पे भी 30 कार्बन है, यहाँ पे भी कितना है? 30 कार्बन. तो ये रीजेनरेशन हो गया. और रीजेनरेशन स्टेप में हर एक RuBP के लिए 1 ATP, तो 6 RuBP के लिए 6 ATP यूज होगा. ये है हमारा पूरा केल्विन साइकिल. ठीक है, क्लियर है? सो हियर स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. सो आई विल गो विथ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. ऑप्शन डी. 98. The Earth Summit was held in 1992, which is not true for this convention. This convention called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity and sustainable utilization. Correct है? 190 countries pledged their commitment. This is wrong. This
190 कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट, ये जो है ये स्टेटमेंट है फ्रॉम द वर्ल्ड समिट, ओके, नॉट फ्रॉम अर्थ समिट, इट इज़ फ्रॉम वर्ल्ड समिट जो हुआ था 2002 में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट ट्रू है। लेट्स सी द सी ऑप्शन, दिस इज ए हिस्टोरिक कन्वेंशन, यस, and it was held in Rio de Janeiro, that is correct. 99, which of the following plant does not possess the given type of flower? What is the type of flower? यहाँ पे क्या फ्लावर है? हम देख सकते हैं कि थैलामस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, राइट, एंड इट इज पार्शियली कवरिंग द ओवरी। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्लावर है? बताओ ये कौन सा फ्लावर है? ये है हाफ इंफेरियर, half inferior, and what is the other name of half inferior? That is perigynous flower. तो हमें यहाँ पे बोलना है इनमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें पेरीगाइनस फ्लावर नहीं होता। किसमें पेरीगाइनस नहीं होता? इसमें होगा, पीच में होगा, रोज में होगा, कुकुम्बर में नहीं होगा, क्योंकि कुकुम्बर में एपीगाइनस फ्लावर होता है। एपीगाइनस, एपीगाइनस मीन्स इन्फेरियर, है ना, इन्फेरियर ओवरी, इन्फेरियर ओवरी। तो यहाँ पे 99 में हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हायर द टैक्सॉन, मोर आर द कैरेक्टर्स शेयर्ड बाय मेंबर्स। रॉन्ग स्टेटमेंट। टैक्सॉन जितना बड़ा होता है, शेयर्ड कैरेक्टर्स डिक्रीजेस। क्लास is an assemblage of families, no, class is an assemblage of orders. Cat and dog belongs to same order in taxonomical hierarchy, yes, correct. Cat is Felis, cat's genus is Felis, and dog genus is Canis, है ना। Cat family is Felidae and dog family is Canidae, and Felidae and Canidae both comes under same order. Which order it is? Carnivora. So they belong to the same order. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Carolus Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication, and that is correct. Systema Naturae जो है ये कैरोलस लिनियस का पब्लिकेशन है, उनका एक बुक है जहाँ पे सबसे पहली बार उन्होंने सिस्टेमा टर्म यूज़ किया था। सिस्टेमा एक लैटिन टर्म है और जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर किया गया ड्यूरिंग फॉर द क्लासिफिकेशन। ओके, डन। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट ढूंढना था। तो ए और बी इनकरेक्ट है। आई विल गो विद ऑप्शन सी। ड्यू टू द क्रॉस, एक क्रॉस दिया हुआ है, वी हैव टू डू द क्रॉस। टी टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लेट्स राइट द गैमेट्स। तो यहाँ पे क्या गैमेट बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर। यहाँ पे क्या गैमेट बनेगा? स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। लेट्स क्रॉस नाउ। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। तो फ्लावर कैसा होगा यहाँ पे? टॉल रेड। स्मॉल टी कैपिटल आर। प्लांट क्या है यहाँ पे? ड्वार्फ एंड रेड। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। टॉल प्लांट रेड फ्लावर। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ड्वार्फ एंड रेड। That is the result. Now let's read the question. How many percent plants dwarf and red flower? कितने परसेंट प्लांट है dwarf and red? You can see total progeny 4 है. Out of total progeny 4, there are 2 plants which are dwarf and red flower. That means what percentage it is? 50%. I will go with option A, which is incorrect for the डाइकैरियोफेस ऑफ फंगस। ओके, डाइकैरियोफेस के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है एगेरिकस में। इन एगेरिकस एक बेसिडियो माइसिटिस फंगस है। ओके, तो एगेरिकस में जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, दैट इज जो डाइकैरियन है, इट गिव राइज टू बेसिडियम, यस, दैट फॉर्म्स haploid spores
What are the haploid spores called? They are called basidiospores, and these are formed exogenously. Yes, option A is correct, but हमें ढूंढना है incorrect, right? Option B, it is an intervening stage between plasmogamy and karyogamy. So it is an intervening stage between plasmogamy and karyogamy. Yes, during sexual cycle of fungus पहले plasmogamy होता है. Plasmogamy means fusion of the protoplasm. Now in case of dikaryotic stage after plasmogamy, that means after fusion of protoplasm, immediately karyogamy नहीं होता. वहाँ पे एक इंटरवेनिंग स्टेज है जहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, जिसके वजह से एक ही सेल में दो न्यूक्ली होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोफेस एंड द सेल विल बी कॉल्ड एज डाइकैरियोन. तो ये करेक्ट आंसर है. ऑप्शन सी, फाउंड इन ऑल फंगल क्लासेस हैविंग branched and septate mycelium. This is a wrong statement क्योंकि branch and septate mycelium ascomycetes में है, basidiomycetes में है और किस में है, deuteromycetes में है. एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन सारे फंगल क्लासेस में डाइकैरियोफेस होता है. द आंसर इज नो, क्योंकि एस्को में होता है और बेसिडियो में होता है सिर्फ. Deuteromycetes do not have this particular stage. Even Deuteromycetes do not even have a sexual reproduction. तो यहाँ पे ऑप्शन सी एक wrong statement है. We have to find out the incorrect. We should go with C. Let's see the D option. It is represented as n plus n. You can see also I have drawn here. It is a n plus n condition क्योंकि पर सेल मतलब हर एक सेल में दो न्यूक्ली है. बिल्कुल सही. So 102 better answer is C. The incorrect statement related to the pollination in grass. So when we say pollination in grass, what kind of pollination it is? Wind pollination. तो जो भी हम लोग आंसर करेंगे it should refer to wind pollination. Option A, pollen grains are light and sticky. No, पहला ऑप्शन ही wrong है. It should be non-sticky. Wind pollination, एनिमोफिली के लिए पोलन क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सो दैट इट कैन इजीली मूव इन विंड. सो ऑप्शन ए विल बी एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लेट्स रीड द अदर ऑप्शन. दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन्स, यस, and large often feathery stigma, yes, so that it can easily catch airborne pollens. Flowers often have a single ovule in each ovary, true. Numerous flowers है and mainly they form inflorescence. Option D भी सही है. So 103 only wrong statement is A. 104 in the following question assertion and reason. Okay, assertion में है both intrinsic माने internal and extrinsic माने external factors govern and control developmental processes in the plant. Plant development को intrinsic extrinsic दोनों factors control करते हैं. True or false? True. Reason, intrinsic factors include both intracellular, true, or intercellular factors that control growth and differentiation in plant. It is true, but the thing is that intracellular factors में आता है genetic factors and intercellular factors में आता है plant growth regulators, that is plant hormones. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि intracellular है plant growth regulators and intercellular है genetic factor, जिसके वजह से statement wrong हो जाता है. So we'll go with assertion is true but reason is false. Which of the following statement is true about a food web in an ecosystem? Option A, it represents the energy flow in a single direction from producers to decomposer. Now when we talk about a food web, it is not a single chain. There are multiple chains that are interlinked, okay, and in this food chain we generally show producers, right, then we show primary consumers, that is herbivores, then we show secondary consumers, that is primary carnivores, then we show tertiary consumers, that is secondary carnivores, and like that we go to the top consumers. So this first option will be wrong. समझ आ गया? It consists of
ओनली ए सिंगल चेन विथ, और नहीं सिंगल चेन, इसी को यहीं पे काट दो, सिंगल चेन है ही नहीं यहाँ पे, एंड विथ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये सही है, लेकिन ये सिंगल चेन नहीं है। इन फूड वेब organisms of an aquatic chain cannot be connected with the organism of terrestrial food chain। बोल रहे कि एक फूड चेन में, एक फूड वेब में, ठीक है, एक फूड वेब में एक्वेटिक फूड चेन का कोई मेंबर टेरेस्ट्रियल के साथ, टेरेस्ट्रियल फूड चेन के किसी भी मेंबर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, एंड दैट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक फूड चेन लिखूँ, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, तो ये क्या फूड चेन है? एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन है, देखो, ग्रास, इंसेक्ट, ओके, एंड बर्ड, ग्रास, इंसेक्ट एंड बर्ड, ये कौन सा फूड चेन चल रहा था? टेरेस्ट्रियल फूड चेन। तो ये एक्वेटिक फूड चेन, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन है। अभी क्या हुआ कि दिस बर्ड ऑल्सो ईट दिस फिश, सो दिस बर्ड is connecting the aquatic food chain along with the terrestrial food chain. So, is it possible that in a food web the organism of different food chains of different habitat, can they be connected? Yes, they can be connected. Option D, it shows the interconnection of multiple food chains forming a complex network. Yes, that is the definition of a food web. So, food web is a interconnection of multiple food chains forming a complex network. So, here which one is true? I will go with option D. Question number 106. Which of these mode of nutrition is or are found in kingdom Monera? Kingdom Monera जिनके सोल मेंबर्स है बैक्टीरिया। क्या मोनेरा किंगडम में कीमोसिंथेटिक है? Yes, there are nitrifying bacteria. पैरासाइटिक है? Yes, there are many that cause cholera, tetanus, typhoid. सेप्रोफाइटिक है? हाँ, डिकम्पोजर्स है, बैक्टीरिया आर गुड डिकम्पोजर्स। फोटोसिंथेटिक है? यस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे चारों तरीके के, ये जो चारों क्राइटेरिया है, all are present in kingdom Monera. Then I will go with option D, all the above. And of course, you know, kingdom Monera has the largest diversity in terms of metabolism or nutrition. Okay. 107. The Abingdon tortoise along with the goat living there, both were eating tender grass. State the relationship. So they were eating the same food, that means their food choice is same, and there is a competition between tortoise and goat. What kind of competition it will be? It will be interspecific competition because they belong to different species. Intra नहीं होगा। Intra कब होता है? जब people from the same species they compete. सी नहीं हो सकता, रिसोर्स यहाँ पे पार्टीशनिंग नहीं हो रहा है। अगर रिसोर्स पार्टीशनिंग होता तो गॉड्स के वजह से टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट नहीं होता, राइट? वी नो टॉर्टोइस गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड बिकॉज ऑफ द गॉड्स। कंपिटिटिव रिलीज नहीं होगा। कंपिटिटिव रिलीज क्या होता है कि जब अगर एक हैबिटेट में दो कंपिटिटर्स हैं, एक डोमिनेटिंग है, एक थोड़ा सा रिसेसिव है, एक सुपेरियर है, एक इन्फेरियर है। अगर सुपेरियर उस हैबिटेट में, उस लोकेलिटी में ना रहे तो जो इन्फेरियर है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है क्योंकि सारा रिसोर्सेज अभी उसको मिलेगा। इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव रिलीज। तो क्या यहाँ पे टॉर्टोइस और गोट्स पे ये फिनोमेना एप्लीकेबल है? आंसर इज नो। सो इन दिस केस 107 विल गो विद ऑप्शन बी। 108. Which was the last human chromosome to be completely sequenced? So last chromosome sequenced is chromosome 1, which is completed in May 2006, जबकि HGP is completed in 2003. Okay, so HGP was officially completed in year 2003, but it took more time to sequence the chromosome 1. So for this question, I will go with option C. A plant shows thallus level of organization. When we tell thallus level, then हमारे दिमाग में आता है algae and bryophyta, right? टेडोफाइटा में भी जो गैमिटोफाइट है वो थैलस है, जिनको हम कहते हैं प्रोथैलस। लेकिन एज ए होल अगर हम बोले कि क्या टेडोफाइट थैलस है, क्या टेडोफाइट थैलस बॉडी है, तब हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि टेडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है, जो डोमिनेटिंग फेस है, इट गॉट
ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में दिमाग में क्या रखना है कि अच्छा एल्गे एंड ब्रायोफाइट। फिर क्या लिखा है, यूनिसेलुलर राइजोइड। अभी जैसे लिखा है राइजोइड, ओके, राइजोइड तो कौन सा जो हो जाएगा यहाँ पे, ज़्यादातर यहाँ पे हो जाएगा ब्रायोफाइट। और ब्रायोफाइट में अभी दो कैटेगरी है, लीवर रॉट एंड मॉस। लीवर रॉट्स में होता है यूनिसेलुलर राइजोइड, क्योंकि मॉस में राइजोइड इवॉल्व होके यूनिसेलुलर से क्या बन गया है, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। तो सारा जो ये क्वेश्चन का इंडिकेशन किसकी तरफ जा रहा है, लीवर रॉड की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि इसमें मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं एंड दे नीड वाटर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। ओके, तो यहाँ पे क्या मॉस आंसर हो सकता है, नहीं। क्यों मॉस आंसर नहीं हुआ, एज आई टोल्ड मॉस हैज मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड। जिम्नोस्पर्म में राइजोइड तो होता ही नहीं, ना ही जिम्नोस्पर्म में थैलस बॉडी है। लीवर रॉड्स, यस, लीवर रॉड्स इज द करेक्ट आंसर। हॉर्स टेल, नो, हॉर्स टेल्स आर टेरोफाइट्स, उसमें हम लोग नहीं बोलेंगे यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ओके, 110, what is not required in chemiosmosis? When we talk about chemiosmosis, of course it is related to electron transport system. Electron transport system occurs in mitochondria and in chloroplast. The question is chemiosmosis में क्या नहीं चाहिए, उसके लिए जानना पड़ेगा क्या चाहिए। पहला ऑप्शन है ए मेम्ब्रेन, क्या मेम्ब्रेन चाहिए, यस। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा मेम्ब्रेन केमियोस्मोसिस में यूज होगा, दैट इज क्रिस्टी, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जबकि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मेम्ब्रेन यूज होगा, दैट इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो दोनों में मेम्ब्रेन है, यस, मेम्ब्रेन चाहिए। प्रोटॉन पंप चाहिए, यस, प्रोटॉन पंप चाहिए। अच्छा, और एक बात, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसको सेपरेट कर रहा है, अगर मैं देखो क्रिस्टी तो यहाँ पे आई विल राइट पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और डाउन व्हाट आई विल राइट, मैट्रिक्स। सो दिस मेम्ब्रेन कम्स बिटवीन दिस, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कम्स बिटवीन ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा। ओके, तो इस तरीके से याद रखो। प्रोटॉन पंप तो चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन पंप है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन पंप है साइटोक्रोम B6F। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, दोनों के बीच में, दोनों जो ये लोकेशन है इसमें क्या बनना चाहिए, डिफरेंस बनना चाहिए। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखें, रेस्पिरेशन में देखें, तो जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम, एंड दैट्स वाई थ्रू F0 F1 complex hydrogen come back from PMS to matrix and ATP is formed in matrix. अगर क्लोरोप्लास्ट में देखें then lumen has higher hydrogen concentration, stroma has low hydrogen concentration, and that's why the F0 F1 is placed like that, and hydrogen moves from lumen to stroma and ATP is produced in the stroma for the requirement of dark reaction. ठीक है, तो ये है हमारा समरी यहाँ पे रिगार्डिंग केमियोस्मोसिस। तो तीनों के तीनों ये जो है ABC ये ट्रू है। ऑप्शन डी दिया हुआ है ATP। क्या केमियोस्मोसिस में ATP चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों, केमोस्मोसिस में ATP प्रोड्यूस होता है, ATP यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। विथ रेस्पेक्ट टू मॉर्गन्स क्रॉस ऑफ ड्रोसोफिला involving genes of white eye and miniature wing, select the correct statement from the ones। तो ये एक्स लिंक्ड, याद करो एक क्रॉस था, ये जो जीन है ये एक्स लिंक्ड जीन्स है, एक्स क्रोमोसोम में होगा। तो ये है क्या दिया हुआ है, वाइट आई, तो वाइट आई के लिए हमने ऐसा लिखा था, और मिनिएचर विंग, मिनिएचर विंग, तो ये है फीमेल म्यूटेंट ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसको क्रॉस किया गया था मेल ड्रोसोफिला के साथ जो है वाइल्ड टाइप। ओके, ऐसा क्रॉस था। यहाँ पे जो दो जीन है, एक है जीन फॉर आई कलर, और दूसरा है साइज ऑफ विंग, मिनिएचर इज अ साइज ऑफ विंग। दीज टू जीन्स आर लोकेटेड एट मच डिस्टेंट, इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए जिसमें लिंकेज कम होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का चांस ज़्यादा है।
तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है, रिकॉम्बिनेंट टाइप या परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। क्या ढूंढना है हमें? करेक्ट ढूंढना है। तो दिया हुआ है 37.2% रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर फॉर्म। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। 98.7% पेरेंटल टाइप, नो, ये रॉन्ग है। 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप, देखो ये दोनों रेलिवेंट है, बी और डी ऑप्शन। ये किसके लिए ट्रू है? फॉर येलो बॉडी व्हाइट आई क्रॉस के लिए, ठीक है। वन इज जीन फॉर बॉडी कलर एंड वन इज जीन फॉर आई कलर। ये जो एक क्रॉस हमने किया था ड्रोसोफिला में, उसके लिए ये दोनों पॉइंट करेक्ट है, नॉट फॉर दिस। ऑप्शन सी था कि these two genes are located at minimum distance. No, the distance is more between these two genes. Same chromosome है, true, and very tightly linked. No, they are not tightly linked. अगर tightly link होता तो देखो यहाँ पे tightly link है, इसीलिए recombination percentage कितना कम हुआ है। यहाँ पे tightly link नहीं है, यहाँ पे linkage कम है, and that's why the percentage of recombination is higher. Okay, so 111 will go with option A. 112. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. पहले तो gullet दिया है, gullet is found in paramecium and paramecium comes under ciliated protozoa. तो यहाँ पे दो हिंट है कि cilia present है और इसमें gullet है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? पहले तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है स्पोरोजोआ, इट इज़ अ मैलेरियल पैरासाइट, और स्पोरोजोआ में कोई भी मोटिलिटी नहीं होता, तो सीलिया तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ट्राइपेनोसोमा, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द स्लीपिंग सिकनेस, इट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो उसमें फ्लैजेला होगा ना कि सीलिया। Entamoeba, that is amoeboid protozoa, that is a parasite and cause amoebiasis in human, and because it is an amoeba, okay, generally entamoeba parasite है, motility नहीं होता, लेकिन अगर generally हम लोग amoeba भी सोचे, वहाँ पे pseudopodia होता है, right, not cilia, तो यहाँ पे entamoeba option में नहीं आएगा। So what is our correct answer? Option B. 113. How many of the following characteristics are related to the family that includes बेलाडोना एंड पेटोनिया? पहले तो हमें ये जानना है कि बेलाडोना एंड पेटोनिया कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। अभी सोलेनेसी फैमिली के कैरेक्टर्स याद करना है और इस क्वेश्चन को करना है। persistent calyx, yes, Solanaceae has persistent calyx, right, this is the persistent calyx. Polypetalous है क्या? No, this is wrong. Solanaceae shows gamopetalous condition, माने petals are fused. Obligately placed carpels, this is true. Epipetalous, yes, this is true, the petals remain attached with stamens. Non-endospermous seed, no, endospermous होना चाहिए, Solanaceae is endospermous. Solen placenta, yes, Solanaceae has solen placenta. Single large ovule, no, many ovules are present with axile placentation. हमें ढूंढना है कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक है? 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जानना चाहिए ये दो टर्म कि एंडोडर्मिस में सुबेरिन का होना, ओके, ये किसके एनाटॉमी में है? वी नो एंडोडर्मिस विद सुबेरिन, दिस पार्ट इज कॉल्ड Casparian strips, and Casparian strips are called water checkpoint, and this Casparian strip is very important to prevent water movement via apoplast movement. Okay, so these are the relevant point, and all these things, all these feature, the Casparian strips are found in root. So here पहला ऑप्शन था stem, यहाँ पे भी स्टेम, तो ऑप्शन होगा नहीं, सो विल गो विथ ऑप्शन बी, डाइकॉट रूट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ए कंपेरिजन बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा कंपेरिजन नहीं है ये ढूंढना है। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। एरोबिक respiration and anaerobic respiration both use glucose as a respiratory substrate. How much glucose is broken? It makes a comparison, right? क्योंकि anaerobic में ग्लूकोज पार्शियली ब्रेक डाउन होगा जबकि एरोबिक में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इट इज़ ए कंपेरिजन। हमें क्या ढूंढना है? नॉट ए कंपेरिजन। तो ये ऑप्शन हम नहीं जाएंगे। नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये तो एकदम कंपैरिजन है क्योंकि एनारोबिक में काफ़ी कम एटीपी बनता है। वी नो द नेट गेन इज 2 एटीपी ओनली, जबकि एरोबिक में 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं बेस्ड ऑन शटल सिस्टम, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड formed in the cytoplasm par glucose molecule साइटोप्लाज्म में कितना पायरुविक एसिड बनता है? क्या अलग अलग जो है नंबर है एरोबिक और एनारोबिक के लिए? नहीं। यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं है क्योंकि एनारोबिक में भी 2 पायरुविक एसिड बनेगा फॉर 1 ग्लूकोज। इन एरोबिक ऑल्सो इट इज 2 पायरुविक एसिड फॉर 1 ग्लूकोज। सो इट इज नॉट ए कंपैरिजन। आई विल गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है speed of NADH oxidation, how fast or how slow NADH is converted to NAD plus by oxidation। ये एक कंपैरिजन है क्योंकि एनारोबिक में ये ऑक्सीडेशन काफ़ी स्लो है जबकि एरोबिक में दिस ऑकर्स मच विगोरसली। तो ये एक कंपैरिजन है एंड वी हैव टू चूज नॉट ए कंपैरिजन। आई विल गो विथ सी। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। Thalassemia and phenylketonuria are autosomal recessive traits in human. True. Thalassemia and phenylketonuria are disorders of the blood and can equally affect human male and female. कोई भी अगर autosomal disease है then there is no differentiation of occurrence between male and female. Male and female equally normal, equally carrier और equally affected हो सकता है। ये पर्टिकुलर पार्ट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि थैलासेमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर बट फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ए metabolic disorder. So this is a wrong statement. So I will go with statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D. Choose the incorrect statement from the following. Which one is incorrect? Mitosis cannot occur without DNA replication in S phase. Mitosis cannot occur without DNA replication. Yes, this is correct. अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि माइटोसिस में हमें पता है माइटोसिस में जब एनाफेज आएगा द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम नीड टू बी सेपरेटेड एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स। लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हुआ तो कैसे सेपरेट करेंगे, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं है। इन सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स सेल डिविजन डज नॉट ऑकर। ट्रू है, ये भी ट्रू है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, these are haploid cells and found in higher plants. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होगा इनसाइड द एम्ब्रायो सैक। तो क्या ये फर्दर डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। देन इट इज ट्रू। डीएनए रेप्लिकेशन कैन नॉट ऑकर विदाउट सेल डिविजन। ओके, दिस इज रॉन्ग। समटाइम DNA replication occurs but cell do not divide and this occurs in different kind of cells. इस फिनोमेनो को, ये जो फिनोमेनन है इसको कहा जाता है पॉलीटेनी। क्या कहा जाता है? पॉलीटेनी। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होना चाहिए था? कैन ऑकर विदाउट सेल डिविजन। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है, ऑप्शन सी। इन हैप्लॉइड इंसेक्ट्स एंड लोअर प्लांट्स माइटोटिक सेल डिविजन ऑकर्स। यस, अगर हैप्लॉइड इंसेक्ट ले जैसे कि ड्रोन्स क्या है? द मेल हनीबीज। A male honeybee is haploid, right? So here when this male honeybee will produce gamete, it will do mitosis, right? It will do mitosis.
इवन जब ये मेल हनी बी जब ग्रो करेगा, जब इसका ग्रोथ होगा, ओके, सो ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, ये कौन सा सेल डिविजन कर रहा है? माइटोसिस। तो गैमिट फॉर्मेशन, सोचो कि मेल गैमेट बना, तो गैमिट भी क्या है? हैप्लॉइड, और खुद हनी बी उसका जो गैमिट मदर सेल है वो भी क्या है? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे कौन से पार्ट जा रहे हैं हम लोग कि हैप्लॉइड इंसेक्ट में माइटोटिक सेल डिविजन होता है, ट्रू, राइट। लोअर प्लांट्स में भी क्या होगा? माइटोटिक सेल डिविजन होगा, जैसे कि एल्गी में होगा, ब्रायोफाइट्स में होगा। अगर ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में, जिसमें भी हम देखें, इनमें क्या होता है? गैमिटोफाइट होता है ना, और गैमिटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड। तो गैमिटोफाइट का डेवलपमेंट भी तो है ना, ग्रोथ भी तो क्या होगा? माइटोटिक सेल डिविजन से होगा। और इवन यहाँ पे भी गैमिटोफाइट जब गैमिट फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे भी गैमिट फॉर्मेशन माने गैमिटोजेनेसिस में भी जो सेल डिविजन होगा दैट विल बी व्हाट? माइटोसिस। क्लियर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे 117 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 118 in the following question again there is a assertion and reason. Let's see. Assertion है the exonym of cilia and flagella has considered to have 9+2 array in the arrangement of cytoskeletal elements. Correct है। exonym क्या है? exonym is the core part of the cilia and flagella और उसमें 9+2 जो है cytoskeletal elements है, ये माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। And exonym poses 9 doublets, तो ये जो 9 है ये क्या रिफर कर रहा है? 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules, true, and a pair of centrally located microtubules, this correspond to this 2. तो क्योंकि एक्सोनिम में 9 doublets है at the periphery and 2 microtubules are there at the center, that's why it is considered that exonym has 9+2 arrangement. So यहाँ पे assertion reason दोनों correct है and reason is the correct explanation of assertion. 119 which of the following is correct regarding goals of human genome project? Okay, हमने पढ़ा है एचजीपी में बहुत सारे गोल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट इज गिवन कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ एचजीपी, उसके साथ इसको मैच कराना है, कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है, हमें ढूंढना है करेक्ट। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। नो, यहाँ पे गोल्स में लिखा हुआ था आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन्स, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग है। Determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up the DNA. This is correct. Store this information in type form in the books. No. Store information in the form of or in databases. This is true. Transfer related technologies to other sectors such as industries. Correct. And address ELSI, ethical, legal and social issues. That is also correct. ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 रॉन्ग है, तो क्या करेक्ट है? 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, 5 करेक्ट है, 2, 4, 5 करेक्ट है, 2, 4 and 5, ऑप्शन बी। Given below are 2 statements, statement 1, statement 2. Scientific term for categories is taxa, correct? Taxa can indicate categories at very different levels. Taxa अलग अलग कैटेगरी शो करता है और वो कैटेगरी जो है डिफरेंट लेवल्स के हो सकते हैं। यस, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। यस, एनिमल्स क्या है? अच्छा, मैं यहाँ लिख दूँ एनिमल्स आर, एनिमल जब बोलेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किंगडम। तो एनिमल यहाँ पे एक टैक्सॉन है, जबकि किंगडम क्या है? कैटेगरी। ठीक है, फिर आता है मैमल्स रिप्रेजेंट क्लास, राइट? तो सेम मैमल यहाँ पे एक टैक्सॉन है और क्लास क्या है? कैटेगरी है। डॉग रिप्रेजेंट ए स्पेसिस, तो यहाँ पे डॉग एक टैक्सॉन है और स्पेसिस एक कैटेगरी है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टेक्सा। यस, ऑल टुगेदर दे आर टेक्सा, बट डॉग इज ए मैमल and mammal is an animal. They represent taxa at different levels. Aren't they representing different level? Yes, one is representing species, one is class, one is kingdom. That means statement 2 is correct. So both statement 1 and statement 2 are true. Select the incorrect statement regarding hotspot.
Hotspot are the areas of high endemism and high level of species richness. True. Western Ghat and Sri Lanka are well-known hotspot. All the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land area. True. Strict protection अगर करें hotspot का, we can reduce ongoing mass extinctions by almost 20%. Wrong. The correct is 30%. Okay. So 1 to 1 will go with option D. Which one of the plant growth regulators would you use if you are asked to? Very important question and very interesting question. कुछ यहाँ पे function दिया हुआ है, मतलब कुछ हमें करने के लिए दिया है कि अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा हार्मोन यूज करेंगे. Let's read the first one. Induce rooting in a cutting of the rose stem. Okay, stem cutting में रूट जो अगर हमको प्रोमोट करना है, रूट फॉर्मेशन, तो हम लोग कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? वी यूज ऑक्सिन, राइट? ऑक्सिन इज ए गुड रूटिंग हार्मोन. इवन ऑक्सिन इज यूज्ड फॉर द रूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर फ्रॉम द कैलस. इंड्यूस डोरमेंसी, जैसे कह दिया डोरमेंसी, आई विल गो विथ एब्सिसिक एसिड. विच हार्मोन कैन इंड्यूस डोरमेंसी? दैट इज एब्सिसिक एसिड. Promote root growth and root hair formation, that is ethylene. That means by using ethylene we can increase the absorptive surface of a root. Induce growth in the axillary bud, that is lateral bud में growth. Which hormone it is? Cytokinins, and that is the reason why cytokinin can overcome apical dominance. So we got our answer. कहाँ मैच करेंगे हम लोग? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन. ऑप्शन बी. मैच कुलम 1 विथ कुलम 2. कुलम 1 में कुछ हमें कोडोन दिए गए हैं और कुलम 2 में एमाइनो एसिड, एंड वी हैव टू मैच इट. ठीक है. एंड वी नो देयर आर 64 कोड्स, एंड आउट ऑफ 64, 61 कोड्स फॉर 20 एमाइनो एसिड्स. और वहाँ पे हमें एक जेनेटिक कोड का टेबल दिया गया है जिसको सीखने में हमें हमेशा परेशानी होती है कि कैसे सीखें. लेकिन अभी तो नीट आ गया है एंड यू हैव टू लर्न. अगर ऐसे क्वेश्चन हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग बाय हार्ट करें, तो कुछ टेक्निक है इस जेनेटिक कोड को याद रखने के लिए. ओके, टुडे आई विल शो यू दैट टेक्निक. व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड, जस्ट लुक फॉर इट. लेट्स सी. जेनेटिक कोड में हमेशा हम लोग पहले से शुरू करते हैं कि अगर यू सेकेंड बेस है, ओके, ऑलवेज स्टार्ट विथ यू सेकेंड बेस. यह हुआ पहला बेस, यू, सी, ए, जी. पहला बेस जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, सीक्वेंस सेम ही रखना है, यू, सी, ए, जी, ऐसा ही रखना है. ठीक है. थर्ड बेस में तो ये फर्स्ट बेस हो गया. ठीक है. थर्ड बेस में क्या लिखेंगे? यू, सी, ए, जी. इसको ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे सेम सीक्वेंस को, यू, सी, ए, जी, यू, सी, ए, जी, एंड हेयर ऑल्सो सेम. ये है टोटल फॉर्मेट. अभी हर बार हमें क्या करना है? सिर्फ सेकेंड बेस जो है उसको चेंज करना है. तो सेकेंड बेस में इस बार हमने लिया है यू, तो सब में यू लिख दो सेकेंड बेस में. जब सी सेकेंड बेस लेंगे, सेम फॉर्मेट लिख के सी को लिख देंगे सेकेंड बेस में. ओके. तो जब यू सेकेंड बेस है तो इसका एक फॉर्मूला है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, वो है 2 + 2 + 2 + 4 3 1 4. ओके. तो यहाँ पे 2 है फिनाइल एलानिन. क्या है? फिनाइल एलानिन. ये 2 क्या है? दिस फर्स्ट 2. सो फर्स्ट 2 विल बी फिनाइल एलानिन. इसके बाद क्या दिया है? 2 + 4, मतलब ये 2 और ये 4 ये सेम होगा. क्या होता है इसमें? ल्यूसिन. तो ये है ल्यूसिन. नेक्स्ट है 3. दिस 3, दिस इज आइसोल्यूसिन. आइसोल्यूसिन. This 1, this is the start codon, and the start codon codes for methionine. And 4, this 4, this is valine. ठीक है. ये हो गया U सीरीज. तो इसको ऐसे सीखना है. Just remember this part. Let's see the next one. C. अगर C सेकेंड बेस है तो सेम लिखेंगे, फर्स्ट बेस, थर्ड बेस. Now let's fill the second base. C सीरीज में सीक्वेंस है 4 4 4 4. वेरी इजी. 4 4 4 4. यहाँ पे तुम्हें याद रखना है एक स्लोगन, 7 pigs turning around, and these are the
इनिशियल्स ऑफ द एमाइनो एसिड। पहला इनिशियल क्या है? S, देन S फॉर सेरीन, P प्रोलीन, T थ्रियोनिन, A एलानिन। ओके, नेक्स्ट इज A सेकेंड बेस। क्या होगा अगर A सेकेंड बेस होगा? लेट्स फिल द सेकेंड बेस। द फॉर्मूला हियर इज ऑल 2, सब 2 है यहाँ पे। So here also one slogan I will give that will help you remembering this one. This star has glow as light as God. Okay, now try to understand this. 2 है ना, तो यहाँ पे 2 सबसे पहले क्या दिया है? this T है, T for टायरोसिन, स्टार से क्या होता है? स्टॉप, हैज इज हिस्टिडिन, ग्लो इज ग्लूटामिन, एस इज एस्परेजिन, लाइट से क्या होगा? लाइसिन, ए एस्पार्टिक एसिड एंड जी ग्लूटामिक एसिड। इजी लग रहा है? एंड द लास्ट वन, ओके, लास्ट वन आई विल राइट फॉर G when G is second base, थर्ड बेस लिख देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है 2 + 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 4. Now these 4 and these 2 are same. Okay, 2, the first two is cysteine. उसके बाद देखो 1 और 1 दिया है, 1 है stop and this one is tryptophan. उसके बाद आता है 4 आर्जिनिन है यहाँ पे, फिर 2 और 2, देखो यहाँ पे आर्जिनिन है, यहाँ पे भी क्या होगा? आर्जिनिन, क्योंकि हमने क्या कहा? ये दोनों सेम है, बीच में ये 2 एक्स्ट्रा है, दिस इज सेरीन अगेन एंड द लास्ट वन 4 इज ग्लाइसिन। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा जेनेटिक कोड। बिफोर योर नीट एग्जाम प्रैक्टिस इट वंस सो दैट वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, आई थिंक दैट विल बी इजी नाउ। सबसे पहला दिया हुआ है AGU, हमें क्या देखना है? सेकेंड बेस क्या है? G है, राइट? तो अगर G सेकेंड बेस है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? 2 1 1 4 2 2 4, ये था। तो पहले ये देखना है। फिर है A कहाँ पे आएगा? 2 1 1, ये जो 4 है 2 1 1, 4 चला गया, ये किसके लिए चला गया? U के लिए चला गया, जहाँ पे फर्स्ट बेस क्या था? U था। समझ आ गया? ये 4 किसके लिए? जहाँ पे फर्स्ट बेस क्या है? C है। हमें दिया है फर्स्ट बेस A, तो A में या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ये जो 2 है ये कौन सा होगा? ये होगा AGU AGC, और ये जो 2 है ये अलग होगा, AGC, सॉरी ये 2 होगा AGA एंड AGG, राइट? तो हमें पूछा AGU, तो AGU यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था सेरीन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कनेक्ट हो जाएगा सेरीन, दैट इज A इज 3। फिर है GAG, चलो इसको ट्राई करते हैं। GAG है ना, देखना तो पड़ेगा ना कि कैसे इसको निकालते हैं। जैसे ही देखा A सीरीज में क्या था? 2 का सीरीज था, और G कहाँ आता है? G आता है एकदम लास्ट में आता है। तो लास्ट के जो 2 + 2 वो क्या था? This star has glow as light as God, aspartic acid, glutamic acid। और जो आखिर के 2 है उसमें क्या आते हैं? उसमें आते हैं GAA एंड GAG, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे B जो है ग्लूटामिक एसिड कहाँ पे है? 5 पे है। नाउ AUA है, U का सीरीज है, क्या सीक्वेंस था? 2 + 2 + 4 + 3 + 1 + 4। ये है U के लिए, ये है C के लिए, ये है A के लिए। तो ये कौन सा था? आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पे AUA कनेक्ट होगा आइसोल्यूसिन से, तो C हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट है GGG सबसे लास्ट वाला है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये है ग्लाइसिन UCA, ओके UC C सीरीज का पहला 7 कहा था ना, 7 पीक्स टर्निंग अराउंड, तो ये कौन सा था? सेरीन था। तो E क्या होगा?
सेरीन कहाँ पे है 3, मतलब फिर से ये भी सेरीन होगा, ई हो जाएगा 3। सीक्वेंस क्या है 3 5 2 1 3, 3 5 2 1 3, सो विल गो विथ ऑप्शन ए। ठीक है, जिनको जेनेटिक कोड आता है, जिनको वो ट्रिक आता है, उनके लिए टाइम नहीं लगेगा। मुझे समझाने में टाइम लगा क्योंकि आई वांट यू टू शो हाउ टू फाइंड आउट, ओके, लर्न इट। अदरवाइज जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु नोज दे विल डू करेक्टली, राइट, और हमारे 4 मार्क्स नहीं तो हाथ से चले जाएंगे। नेक्स्ट सी, टू एंश्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, क्या करना पड़ेगा, टू स्टॉप कंटामिनेशन, और आई कैन राइट टू अवॉइड कंटामिनेशन, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size. Yes, this is called bagging. There is need to emasculate bisexual flowers of selected male parent. क्या मेल पेरेंट में जो फ्लावर है उसको इमास्कुलेशन करते हैं? नहीं, इमास्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ एंथर। तो मेल पेरेंट में क्यों करेंगे, राइट? मेल पेरेंट में फंक्शनल पार्ट ही एंथर होता है। दिस इज रॉन्ग। इमास्कुलेटेड फ्लावर्स आर टू बी बैग्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। यस, इमास्कुलेशन के बाद जब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, इमास्कुलेटेड फ्लावर में जब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया तो फ्लावर को हमें बैगिंग करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रीबैगिंग, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर में नॉट नीडेड टू रीबैग आफ्टर डस्टिंग विद पोलन, दिस इज रॉन्ग। पिस्टिलेट फ्लावर हो, इमास्कुलेटेड फ्लावर हो, हमें रीबैगिंग करना पड़ेगा, दैट मीन्स आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। If the female parent bear bisexual flower, anther should be removed, that is called emasculation. Yes, और कब remove करना चाहिए? Before the dehiscence, माने before the breakdown of the anther, before the release of the pollen, and that is true. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना था कि कौन सा true होगा ना, तो हमें है A, C and E, A, C and E, option C. Orchid Ophrys supplies eggs to a species of bee. Okay. Ophrys and species of bee, they show a particular type of mutualism. जहाँ पे Ophrys eggs को क्या ऑफर कर रहा है? Pseudo copulation, and in return what bee species is giving to Ophrys, that is pollination. तो यहाँ पे correct answer है option B, right? Ophrys has such kind of flower जहाँ पे एक petal जो है resemble करता है female bee से. Okay, so in a flower of Ophrys, one petal look like a female bee, and male bee get attracted to that flower and reach the flower and do pseudo copulation. So here the plant is offering pseudo copulation to the bee, and when the male bee for pseudo copulation, they move from one flower to the other flower, they help in pollination. So here correct answer is B. Food is stored as Floridian starch in red alga, whereas mannitol is the reserve food material of brown alga, right? So Floridian starch, which is very much similar to the glycogen and amylopectin, right, found in red algae, that is rhodophyceae, जहाँ पे brown algae माने phaeophyceae में हमें मिलता है laminarin and mannitol as a reserve food. So we'll go with option C. Adventive embryony in citrus is related to which of the following event? कौन सा related है? पहला ऑप्शन है nucellar cells, cells of nucellus tissue surrounding the embryo sac divide and protrude into the embryo sac. Yes, that is true. If it is a ovule and this is the embryo sac, so the nucellus tissues are surrounding this embryo sac and they rapidly divide, and the cell start budding inside the embryo sac, and whatever the cell entered the embryo sac, they turned into embryo, and when they turned into embryo, that means there will be many embryos present in a single seed, and that's why this condition is called polyembryony, right? तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, रिलेटेड है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? Each ovule contains many embryos, true था, each of which can give rise to a haploid plant. नहीं, अगर न्यूसेलस से एम्ब्रायो बन रहा है, न्यूसेलस इज ए पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, सो न्यूसेलस में जो सेल होंगे वो डिप्लॉयड होंगे,
तो उस एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो बना वो भी डिप्लॉयड होगा, उससे जो प्लांट बना वो भी डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियोस आर रिजल्टेंट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, करेक्ट है। डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, नो नॉट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एपोमिक्सिस में एग से डेवलप हो सकता है, बट नॉट इन दिस केस। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हम बोल रहे हैं कि डेवलप फ्रॉम न्यूसेलस, नॉट फ्रॉम द एग। दिस इवेंट इज टर्म पॉलीएम्ब्रियोनी, ट्रू। It is very similar to parthenocarpy, wrong. Parthenocarpy is formation of fruit without fertilization, और ऐसे fruits में seed नहीं होते, जबकि adventive embryony, okay, उसमें तो seed होते हैं, seed with many embryos. So this is not relevant. Which of the following is not a characteristic of pteridophyte? True roots, stems, leaves are present. Yes, true है. Dominant sporophytic phase होता है, right? स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट है, जबकि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है दैट इज कॉल्ड प्रोथैलस, दैट इज नॉट डोमिनेंट, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप। प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, यस, टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट हु डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम, हु हैव डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम। विंड पॉलिनेशन इन सम, नो, पॉलिनेशन नहीं होता टेरिडोफाइट में, राइट। टेरिडोफाइट में पॉलिनेशन नहीं होता, यहाँ पे गैमीट अभी भी मोटाइल है एंड दे टेक द हेल्प ऑफ वाटर टू रीच द archegonium. Pollination, wind pollination started from gymnosperm. Okay, so this statement is wrong. Option D is not a characteristic. Protozoans are heterotrophs. True. Parasite भी होता है और predator भी है, प्रोटिस्टा है, ये भी करेक्ट है, और ये लोग प्रीमिटिव रिलेटिव्स है एनिमल्स के, ये भी करेक्ट है। सारे ऑप्शन करेक्ट है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। These pigments of LHC help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. ये किसका डिस्क्रिप्शन है? ये डिस्क्रिप्शन है एसेसरी पिगमेंट्स का, ये डिस्क्रिप्शन है एंटीना मॉलिक्यूल्स का। फाइंड द ऑड वन, हमें ऑड वन ढूंढना है, माने इनमें से कौन सा ये LHC का हिस्सा नहीं है। तो ज़ैंथोफिल तो है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है। क्लोरोफिल ए is not part of LHC. Chlorophyll A is not an accessory pigment, rather it is the main pigment, chief pigment of photosynthesis, क्योंकि chlorophyll A is reaction center. तो यहाँ पे B option odd option है, I'll go with B. Match the coulombs, okay? Morphology का question है, very very easy, I can see. Pulvinus क्या होता है? Solen leaf base and it is found in leguminous plant, Fabaceae family. Root hairs, epidermal cells. Root hairs are the unicellular extension of the epidermis. तो यहाँ पे नंबर 1 I will say C और 2 E. आगे देखते हैं। Thalamus is the solen end of the pedicel. Yes, it is also called receptacle. True. Rachis is the common axis of leaflets that actually represent the midvein. And in which kind of leaf we found rachis or rachis? That is pinnately compound leaf, right? And it is very commonly found in neem. Neem is an example where leaf has rachis. Perianth is accessory organ because perianth is such a structure present in a flower where calyx and corolla are not differentiated, right? So calyx and corolla in general is accessory, they are non-reproductive structure. तो perianth भी क्या होगा? Non-reproductive structure. So I'll go for 5A. क्या sequence है? C E B D A. C E B D A. Option A. In the following question, okay, the assertion reason का question है, any calculation, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। Any calculation of energy content, biomass or number, ठीक है, has to include all organism, बोल रहा है कि include करना पड़ेगा all organism at the trophic level. एक particular trophic level पे अगर हम लोग number calculate कर रहे हैं या biomass या energy calculate कर रहे हैं, उस trophic level पे, उस time पे जितने भी organism हैं सबको include करना पड़ेगा। ये हो गया assertion। और क्या कहा था? assertion को हमेशा क्या सोचना चाहिए? एज ए क्वेश्चन, क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा? वाई वी नीड टू इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म टू कैलकुलेट नंबर, एनर्जी और बायोमास? रीजन क्या है? नो जनरलाइजेशंस वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली ए फ्यू individuals at any trophic level into account.
कोई भी हम लोग जनरलाइजेशन, कोई भी कैलकुलेशन अगर ए फ्यू इंडिविजुअल के बेस पर बनाए तो वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो कब ट्रू होगा? अगर हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें जो उस ट्रॉफिक लेवल पे है। तो क्यों हमें कैलकुलेशन के टाइम पे सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना है? क्योंकि अगर हम लोग कुछ लोगों को लेके कैलकुलेशन करेंगे, कंक्लूजन देंगे, वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। समझ आ गया? तो कितने अच्छी तरीके से रीजन यहाँ पे असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। यस और नो? सो विच ऑप्शन विल गो विथ? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Option A. If at t time population density is n, then what is the equation for the population density at t plus 1 time? So we know n t plus 1, तो ये क्या होगा? n t। अभी कितना इंक्रीज हुआ या कितना चेंज हुआ, तब क्या करेंगे? पहले हमेशा पॉजिटिव फैक्टर लिखते हैं, दैट इज बर्थ, ओके, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन, राइट, माइनस जो पॉपुलेशन को कम करे। कौन कम करेगा? डेथ रेट, दैट इज मॉर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन। ये होगा फॉर्मूला। अभी देखो किसके साथ मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ, है ना? सी के साथ मैच हो रहा है, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। यस, आई विल गो विथ ऑप्शन सी। 134. Identify the components P and Q labeled in the following reaction of citric acid cycle, that is Krebs cycle. तो यहाँ पे है citric acid 6 कार्बन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो 6 कार्बन से अगर एक कार्बन निकल गया तो यहाँ पे कंपोनेंट होना चाहिए 5 कार्बन। अच्छा, तो 5 कार्बन होगा तो ऑप्शन ए में 5 कार्बन है, ये ठीक है। ये 5 कार्बन है, सी 4 कार्बन दिया हुआ है और डी में भी 4 कार्बन दिया है पी के लिए। तो सी और डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं, उसको पहले आउट कर दो। अभी यहाँ पे दिया है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन और यहाँ पे भी है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन। नेक्स्ट क्या है? 5 कार्बन से यहाँ पे देखो और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, अनदर डी कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे जीटीपी भी बन गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 कार्बन कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो 4 कार्बन में यहाँ पे, अरे ये भी 4 कार्बन है, ये भी 4 कार्बन है। अभी इसके लिए क्या करें? अभी इसके लिए हमें जानना पड़ेगा साइट्रिक एसिड साइकिल। तो अगर हम देखें साइट्रिक एसिड, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, साइट्रिक एसिड 6 कार्बन, तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। पहला ऑक्सीडेशन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि है 5 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद जब सेकेंड ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो कि है 4 कार्बन, ठीक है। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब यहाँ पे जीटीपी बन जाएगा, माने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, उससे क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन। तो यहाँ पे जो हमारा P है दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और जो Q है दैट इज सक्सिनिक एसिड। आगे क्या होता है? सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमरिक एसिड, राइट। यहाँ पे बनेगा FADH2, फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड और लास्टली मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक वाला ऑप्शन है ही नहीं, होगा ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? P है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और Q है सक्सिनिक एसिड। So we'll go with option A. Okay, last question. Given below are 2 statements. Statement 1. In a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. Yes, अगर ये एक्सपोज फ्लावर है तो वहाँ पे चांसेस है कि कोई भी आउटर पोलन, ओके, कोई भी फॉरेन पोलन उस स्टिग्मा पे गिर सकता है, लैंड हो सकता है और वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ऑटोगैमी इज रेयर, ओके, सो दिस इज ट्रू। गेटोनोगैमी इज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन, नो, गेटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। दिस इज करेक्ट, दिस पार्ट इज करेक्ट, लेकिन इस पार्ट के लिए ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। सो होप यू हैव डन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट। गुड बाय।